फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर अभिषेक महेश्वरी। आज हम डिस्कस करेंगे फाइनेंस इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स जो कि जनरली फाइनल प्लेसमेंट के समय या एसआईपी में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज बुल एंड बियर मार्केट? द ट्रेंड ऑफ द स्टॉक मार्केट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ बुल मार्केट एंड बियर मार्केट. When the stock market is rising or moving up, it is called bull market. The main reasons are increase in the GDP, rise in corporate profits, rise in employment in the country, etc. यानी जब मार्केट के अंदर पॉजिटिव न्यूज होती है तो मार्केट में बायस बढ़ जाते हैं, बायस बढ़ने से डिमांड बढ़ती है और उससे शेयर मार्केट अप हो जाता है. एंड व्हेन द स्टॉक मार्केट इज फॉलिंग और मूविंग डाउन, इट इज कॉल्ड बियर मार्केट. The reasons are decrease in GDP, fall in corporate profits, rise of unemployment in the country. In this phase, people's confidence in the economy is low and more people are selling stock than buying. यानी सेलिंग प्रेशर बढ़ जाता है जिससे स्टॉक के प्राइसेस डाउन हो जाते हैं और मार्केट बेरिश फेज में चला जाता है. Number 2, what do you mean by option? Define, call and put option. An option is a contract that gives its buyer a right but not obligation to either buy or sell an asset at a predetermined price or on before a specified future date. यानी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो ऑप्शन का बायर होता है उसके पास राइट होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करे या ना करे, लेकिन उसकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती. कॉल ऑप्शन, ए राइट बट नो ऑब्लिगेशन टू बाय. यानी इसके अंदर बायर के पास में राइट होता है कि वो ऑप्शन को एग्जीक्यूट करे या ना करे. एंड पुट ऑप्शन इज अ राइट टू सेल, not an obligation to sell. Number 3, what do you mean by depreciation, depletion and amortization? Whether land is a depreciable asset. देखिए, depreciation, depletion और amortization तीनों का ही मतलब है एसेट की वैल्यू का कम होना. बट depreciation means decrease in the value of tangible fixed assets like plant, machine, furniture. Depreciation word is used for the extraction of natural resources like oil, wells, coal mines, etc. And amortization is used for the writing off of the intangible assets like goodwill, trademark, patents, copyright, etc. Land is not a depreciable asset because land की जो life है वो infinite है. Number 4, a firm sold a machine for rupees 8,000. The book value of the machine was rupees 10,000. How will you record this transaction in profit and loss account, balance sheet and cash flow statement? The P&L account will be debited with rupees 2,000 as the loss on the sale of machine. क्योंकि आपने 10,000 रुपीज की मशीन को 8,000 रुपीज में बेच दिया, 2,000 का लॉस हुआ है. दैट इज द रीजन. बैलेंस शीट में से हम 10,000 रुपीज डिक्रीज करेंगे एसेट साइड में जो मशीन शो की जाती है उसके अकाउंट में से. एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय रुपीज 8,000 विल बी शोन एज अ कैश इनफ्लो इन द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट. What is stock split? If a company divides its existing shares into multiple shares, it is known as stock split. If the market price of the share increases too high, then their trading in the stock market decreases. So to boost the liquidity and trading of the shares, company do so. Although the number of shares outstanding increasing, the total value of the shares remain the same compared to pre-split amounts. For example, अगर कंपनी का स्प्लिट रेशियो 5:1 है, यानी कंपनी ने एक शेयर के बदले में 5 शेयर इशू किए हैं, और फॉर एग्जांपल पहले कंपनी के पास 1 लाख शेयर्स थे और एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज थी, तो टोटल वैल्यू इज 10 लाख. पोस्ट स्प्लिट में कंपनी ने क्या किया कि 10 रुपए वाले एक शेयर के बदले में 2 रुपए वाले 5 शेयर इशू कर दिए. तो इससे क्या हुआ कि नंबर ऑफ शेयर्स हमारे 5 टाइम इंक्रीज हो गए, बट द टोटल वैल्यू अब भी सेम है, दैट इज 5 lakh into 2 equals to 10 lakh rupees. What are the main sources of disclosures included in annual report? So these are the main sources of disclosure. Number 1, directors report, जिसके अंदर की ये बताया जाता है कि कंपनी की पास्ट ईयर की परफॉर्मेंस कैसी रही. नंबर 2, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, जिसके अंदर कंपनी अपनी आगे की प्लानिंग बताती है, आगे की पॉलिसीज बताती है और अपनी स्वेट एनालिसिस करती है. ऑडिटर्स रिपोर्ट में ऑडिटर बताते हैं कि वेदर द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द कंपनी और नॉट. बैलेंस शीट tells us about the assets and liabilities of the company. Profit and loss account tells about the profit and loss of the company. Cash flow statement shows from where the cash is coming into the company and where it is spent. Notes to accounts are the supporting documents, and report on corporate governance describes about the transparency level in the company. What is dividend? The part of the profit which is distributed to the shareholders is called डिविडेंड. डिविडेंड दो तरह के होते हैं,
cash dividend. When the dividend is paid in the form of cash, it is cash dividend. And stock dividend when the company pays dividend in the form of shares. कभी समटाइम्स ऐसा होता है कि कंपनी के पास कैश की या तो क्राइसिस होती है या कंपनी कैश को कहीं और यूज करना चाहती है, तो वो शेयर्स के फॉर्म में भी डिविडेंड का पेमेंट कर देती है. What are retained earnings? The part of profit which is not paid to the shareholders is known as retained earnings. यानी डिविडेंड पे करने के बाद जो भी प्रॉफिट बचता है उसको हम रिटेन्ड अर्निंग्स कहते हैं. रिटेन्ड अर्निंग्स का यूज कंपनी लोन का पेमेंट करने में, फिक्स एसेट खरीदने में या उस पैसे को वापस बिजनेस में ग्रोथ के लिए लगा देती है. Is there any relation between interest rate and inflation? Yes, there is a positive relation between interest rate and inflation. जिन कंट्रीज में इन्फ्लेशन का लेवल हाई है वहाँ इंटरेस्ट रेट भी हाई है. जिन कंट्रीज में इन्फ्लेशन कम है वहाँ इंटरेस्ट रेट भी लो है. बीटा इज कोरिलेशन और रेग्रेशन. ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है. तो बीटा इज रेग्रेशन बिकॉज कोरिलेशन डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स व्हाइल रेग्रेशन डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल. सो जब हम बीटा की स्टडी करते हैं तो उसके अंदर हम किसी कंपनी के शेयर प्राइस की स्टॉक से या तो कंपैरिजन कर से रिलेशनशिप देखते हैं या एक पोर्टफोलियो की इंडेक्स से हम रिलेशनशिप देखते हैं. As well as the value of correlation can be between +1 to -1, but the value of beta can be more than +1 and below the -1. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें. थैंक यू.